Welcome all in the class. In the previous classes, we were describing the how to estimate the system states. And first of all, we told we must have the model of the system. For that, we consider a linear system, a linear DC circuit. Such type of system was considered, and we told how to form the model of this. For a small such type of system, we develop the model with the help of normal superposition and Thevenin theorem, with the use of superposition and Thevenin theorem, or any of the basic electrical principle can be used to develop the model of the system. Then we told that system states are obtained by the formula. We derive the formula that it is the G inverse H transpose WZ, and where H transpose, H is the system model, W is the Bayes matrix, and Z is the number of measurements. And we told number of measurements will be more than the number of system states. And number of measurements minus number of the system states is called the degree of freedom. Then we have taken the, in place of this DC circuit, we have considered the AC circuit. And in the AC circuit, you remember, we use the Z bus. With the help of the Z bus, we could have relation between voltage and currents. V is equal to Z bus I bus. And suppose I1, I2, or either V1, V2 may be given, or I1, I2 may be. Some things are given and some are to be obtained. And those who are to be, those parameters which are to be obtained, those are called as system states. Those who are measured, they are called the measured quantities. And the Z measured quantities, number of measured quantities should be more than the number of system states which are to be calculated. So then we use the Z bus. Then we modified the Z bus. If you remember, we modified the Z bus. If other than the voltage and currents, normal injected voltage and injected currents are given, means measured value may be anything, not only the voltage and the injected voltage, injected current. In that, if the line flows are given, then how that H is modified, that we described. Then in the next example, if you see this, we consider a power system like this. That was again a power system. The power system, another, the 4-bus system we consider. And to write the model of the system, we have written the equation, power flow equation, say P12 is equal to 1 by X sine delta 1 minus delta 2. Here, technically, again we linearize the system. Even if it is a power system, we linearized it by assuming sine delta is equal to delta, because power angle is small. Or you can say del theta is equal to very less. That's why we linearized. In that, because of the linearization, we were able to write this P in terms of the theta. If this would not have been there, if we have not linearized this, say here in place of this theta 2 minus theta 3, if it is sine theta, here it is sine theta, and something sine theta plus cos theta, then this matrix cannot be written. We cannot write this matrix. If we cannot write this system matrix, we cannot apply this equation, H transpose WH inverse H transpose W. We cannot apply this. So system estimation cannot be done. But in real sense, the power system is a non-linear system, and we know the non-linear system is represented by power flow equations, which are like this. If you study the Newton-Raphson method, we described the Newton-Raphson method earlier, and we have told our power flow equations are like this. It is not, we assume P is equal to EV by X sine delta, and again EV by, in place of sine, we have written EV by X and delta. So, but in fact, P is not that. P is this. And this P, injected power P, depends upon all the voltages, not only the voltage of the that particular bus. It depends upon all. PI don't only depend upon the VI, it depends upon
all the voltages Vp, P may be 1 to n, all the voltages and all the admittances of the system. Similarly, and there we ignored the Q, but Q is also again the similar type of equation is there. These, in fact, if we want to have the actual analysis, then P and Qi, these equations are to be considered. Although those equations are approximately good enough and they can give the appropriate result, but for accurate value, sometimes we need very accuracy depending upon the requirement. We can need the different type of accuracy. So for the exact solution, we have to consider the Pi and Qi, these equations, injected currents. And if we represent Pi and Qi, these are nonlinear equation, we cannot write these equation in terms of, as we have written P is equal to H delta. In the previous example, we have shown this P was equal to the H delta. So we cannot write this, and we cannot solve simply by inverting the matrix and multiplying by the Z, and you can get the theta 1, theta 2. But here also, since we cannot write the system model, we have to solve such type of equation. We very well know such type of equation can be solved through the iteration technique. And for that, we write such type of Jacobian matrix. This is nothing but we describe in the Newton-Raphson method. Only those equations we are showing here. So this was called as a Jacobian matrix, and the whole power system network was represented by such type of equations, where this P2, P3, P4, these are the measured value or which are the given values, and Qm plus 1 to Qn are the known values again given, and this P20, P30, they are the after calculation, means we estimate some values, we presume the values, on the basis we put those whatever is not given, that are presumed, and whatever is given, we put all those given and presumed value into the power equations, then we get this. And this is the Jacobian matrix, and we know what is the Jacobian matrix. This Jacobian matrix is obtained by derivative of these power flow equations, and finally we obtained this. This was the case in the load flow study. Load flow study is again the method of solving the nonlinear equation, or it is the steady state analysis of the power system. Now, what is difference between this and the state estimation? In the state estimation, we know these measured values, number of the measured values should be more than the number of unknown values that are which are to be obtained. Means number of these are called the system states. In this case, whatever is to be calculated, those are called the system states, and those number of system states should be less than the means we should have here. Suppose these are the n and these are the say n minus m. Or for example, the sum of this n plus n minus m, some of them say it is a 44, for example. Then in case of power flow analysis, we need 44 only. If these are 44, these should be 44. But in case of state estimation, we cannot have, if they are 44, we should have more than the measurement, number of measured values should be more than the 44. Means number of measured values should be more than this 2n plus m minus 1. उससे ज़्यादा होना चाहिए. ये ना n minus m plus n minus 1. So it will be the n minus m plus n minus 1. So 2n plus 1 minus 2n plus 2n minus m minus 1. So this number of measured values should be more than that. Is it clear so far? अब तक जो बताया वो क्लियर हो गया पूरा? I have summarized whatever you have studied in the load flow and the state estimation. Is this point clear? Biresh, चेतना? सर एक बार दोबारा से सर एक बार समराइज कर दो सर. क्या बताऊं दोबारा से? नहीं कुछ नहीं सर, एक बार दोबारा से रिव्यू कर दो इसको. मेरा सर सिग्नल मिस हो गए थे. कहाँ से स्टार्ट करूं? कहाँ तक सुना आपने? सर ये जब आपने ये न्यूटन रैप्सन बताना स्टार्ट किया था. अच्छा, तो देखिए न्यूटन रैप्सन से जस्ट पहले यू शुड have the knowledge
of the state estimation which we described this, ये रिपीट कर रहा हूं, देखिए here we know for the state estimation first of all we must know what is H. सिस्टम स्टेट एस्टिमेशन तभी कर पाएंगे जब हमने सिस्टम मॉडल डेवलप कर लिया है. सिस्टम मॉडल मींस we have to develop the H. H is the system matrix which we write on the basis of the equations of, in the network. Is it clear? यस सर. जो H कैसे लिखते हैं, अगर डीसी सर्किट है तो थेवेनिन और ये सुपरपोजिशन और व्हाटएवर बेसिक प्रिंसिपल है उसके बेसिस पर हमने इक्वेशन लिखते हैं. इक्वेशंस को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो H बन जाता है, सिस्टम मैट्रिक्स बन जाता है. और पावर सिस्टम में यहाँ हमने जैसे ये इवन इफ इट इज पावर सिस्टम, इसमें हमने क्या किया था, पावर फ्लो इक्वेशंस के लिए हमने ईबी बाई एक्स साइन डेल्टा, ये साइन को अप्रोक्सीमेट कर दिया था और साइन हटा दिया, एज्यूमिंग पावर एंगल इज स्मॉल सो साइन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा. तो इससे ये हमारी क्या हो गई, सिस्टम लीनियर हो गई. लीनियर सिस्टम हो गई तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख पाए, P इज इक्वल टू एच डेल्टा. अगर हमारी ये जो इक्वेशंस हैं, पावर फ्लो इक्वेशंस हैं या इंजेक्टेड पावर इक्वेशंस हैं, व्हाटएवर इक्वेशंस आर देयर, दे आर इन द फॉर्म ऑफ साइन डेल्टा कॉस डेल्टा. अगर यहाँ पे साइन डेल्टा कॉस डेल्टा भी होता तो हम ये इक्वेशन कभी नहीं लिख पाते. ये लिख पाते? नहीं सर, ये नहीं लिख पाते. अगर ये नहीं लिख पाते तो हम यहाँ से एक्स भी निकाल पाते, सिस्टम स्टेट्स भी इसमें रखेंगे तो सिस्टम स्टेट्स आएगा, तो ये भी नहीं कर पाते. तो अब हमारा सिस्टम, एक्चुअल सिस्टम क्या होता है, ये तो अप्रोक्सीमेट करके हमने शॉर्टकट से रास्ता निकाल लिया, बट इन फैक्ट अवर एक्चुअल सिस्टम इज द पावर फ्लो इक्वेशंस. हमारा एक्चुअल सिस्टम है वो पावर फ्लो इक्वेशंस है जो हमने लोड फ्लो में देखा हुआ है. And whenever we talk about the load flow study, it is better to have the Newton-Raphson method because power system in practice it is a very big and complex system. So number of buses are more, then Newton-Raphson method is very useful in that case. तो हमने क्या किया, न्यूटन-रैप्सन सिस्टम में लोड फ्लो एक्चुअल हमारी क्या है, जो पावर इक्वेशंस हैं, पावर इक्वेशंस आर एक्चुअली नॉन लीनियर इक्वेशंस. ये देखिए पावर इक्वेशंस, ये दीज आर द पी. ओके, हमारी जो इक्वेशंस है, पहले जो हमने इसे क्या किया था, इसको एज्यूमिंग साइन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा, साइन डेल्टा को रिमूव कर दिया था, इसको लीनियराइज कर लिया था. बट हियर वी कैन नॉट लीनियराइज दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन इसमें नॉट ओनली साइन डेल्टा एंड कॉस डेल्टा इज देयर बट दिस पीआई डिपेंड्स अपॉन ऑल द वोल्टेजेस. तो ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हैं, इसको हमने लीनियराइज नहीं करना है क्योंकि हमें एक्यूरेट डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन हमें एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है. तो then how to solve this equation? In equation को putting these equation into the matrix form so that we can get the H. तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम न्यूटन-रैप्सन मेथड इटरेशन टेक्निक लगाते हैं. अगर ये लीनियर होते तो सिंपली H इनवर्स Z करके हमने निकाल लेना था, लेकिन ये लीनियर नहीं है, इसलिए हम इसको इटरेशन टेक्निक से सॉल्व करते हैं. और इटरेशन टेक्निक से न्यूटन-रैप्सन मेथड में सॉल्व करने के लिए यही हमारा मैट्रिक्स बनता है. हमारा जो मैट्रिक्स बनता है वो इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा. ये ओके, ये डाउन, ये मैट्रिक्स बनता है. तो ये अब इसमें क्या है, ये तो लोड फ्लो स्टडी में हम इसको सॉल्व करते हैं. लोड फ्लो स्टडी और स्टेट एस्टिमेशन में यही फर्क है. लोड फ्लो स्टडी में जितनी सिस्टम स्टेट्स हैं, ये हमारी सिस्टम स्टेट्स में जितना हमें वैल्यूज निकालना है उतना ही यहाँ मेजर्ड वैल्यूज हैं. ये मेजर्ड है और ये इतना निकालना है. तो हम इसको इटरेशन टेक्निक से सॉल्व कर लेते हैं. स्टेट एस्टिमेशन में क्या है, मेजर्ड वैल्यूज आर मोर देन द सिस्टम स्टेट्स. ये जितनी है उससे ये ज्यादा होना चाहिए, मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम होना. अगर ये सपोज करिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये 50 है और तो हमारे टोटल मेजरमेंट्स अगर 60 है तो 60 - 50 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया उतना. तो ये मींस हमें नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा होना पड़ेगा. इफ द नंबर इक्वेशंस आर मोर देन वी रीच ऑन द कंक्लूजन दिस H इज ऑब्टेन्ड. अगर एक बार ये H निकल गया फिर सेम फॉर्मूला लगेगा. व्हाट इज द सेम फॉर्मूला? इसको निकालने के लिए अभी तो इसको निकालने के लिए डिफरेंट टेक्निक है, फिर इसको सॉल्व करने के लिए वेयर दिस इज मोर
दीज आर मोर, तो ये हमारा मैट्रिक्स अब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी, इसमें नंबर ऑफ रोज आर मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें हमारा क्योंकि ये कम है, ये जेड ज्यादा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वही जी इनवर्स एच ट्रांसपोज डब्ल्यू जेड वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो स्टेट एस्टिमेशन के लिए होता है। ऑल्दो दिस एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, ये डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो, एंड but as far as the programming is concerned, as far as the MATLAB is concerned, we can do it easily with the help of MATLAB and the program, क्योंकि उसमें कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, एक बार अगर कर लिया तो माइन इनवर्स करके ये हम इजीली निकालते हैं। नाउ क्वेश्चन, एज आई टोल्ड, द इन केस ऑफ number of measurement in case of the nonlinear power system, where number of measurements are to be higher than the system states, these are the system states, suppose if they are 50, they should be 60. So from where we should bring the other measurements, suppose ये तो इंजेक्टेड पावर है, ये इंजेक्टेड रिएक्टिव पावर है, इसके अलावा एडिशनल मेजरमेंट क्या हो, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ एडिशनल मेजरमेंट, क्या हो सकते हैं? सो yes please, for that now what we do, ये तो सिंपली जस्ट एक फ्लो चार्ट है, हम स्टेट एस्टिमेशन इसमें कैसे करते हैं इन केस ऑफ ए पावर सिस्टम। देखिए पावर सिस्टम में क्या है, नॉट ओनली दिस पी आई एन क्यू आई, इसको बताएंगे, इसको डिटेल करेंगे, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। इन द लोड फ्लो स्टडी वी ओनली नो द पी आई एन क्यू आई एंड वी वांट टू फाइंड आउट वी आई एन डेल्टा। लोड फ्लो स्टडी का वो है जो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, by either method, neutral reaction or any other method. But in this you see not only PI and QI, not only the injected power active and injected power rejected, but there are PF and QF. QF means line flows, power flows, P flows in the line and Q flow in the line. See in some of the line, suppose there are 20 lines, so not all 20, they can be depending upon जितना भी डिग्री ऑफ, अगर हमने 5 जितने भी एक्स्ट्रा इक्वेशन बना लेंगे वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा एक्स्ट्रा। नॉट एंड कैन बी द वोल्टेज एंड करंट, एट सम बसेस वी कैन हैव द वोल्टेज मेजर्ड वैल्यू एंड इन सम ऑफ द करंट फ्लोइंग, एंड एट सम ऑफ अदर मेजरमेंट्स आर आल्सो पॉसिबल। तो हमने देखिए टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने वी हैव नॉट लिमिटेड ओनली पी आई एन क्यू आई, क्योंकि इसको निकालने के लिए सपोज ये वी आई एन थीटा आई है तो हमें पी आई क्यू आई से काम चल जाएगा, नहीं तो जितनी ये होंगे, सपोज ये 10 है तो ये पी आई क्यू आई भी 10 होंगे। इसके अलावा कुछ हमने लाइन फ्लोज, कुछ वोल्टेज करंट और कुछ अदर पैरामीटर्स, मींस वी हैव टेकन मोर मेजरमेंट्स देन इट इज रिक्वायर्ड। ओके, इसके अलावा नॉट ओनली दिस, इसमें हमने सर्किट ब्रेकर के कुछ स्टेटस, ये एक तो ये हुआ एनालॉग मेजरमेंट, उसके अलावा कुछ डिजिटल मेजरमेंट, सर्किट ब्रेकर इज ऑन और ऑफ, तो ये भी एक मेजरमेंट है, एक कंडीशन है। वी कैन सी what are the devices are on, what are the devices working, what are the devices not working. So this means some is the analog signal, some are the digital signal. Those signal, both the signals are used in the state estimation to find out the system states which are to be, on the basis of that we have to take the decisions. In addition to this, before applying the state estimation we have to see whether the system is observable or not. ये शॉर्ट में अभी बता रहा हूँ, अदरवाइज देयर इज वन इन द नेक्स्ट यूनिट देयर इज डिटेल अबाउट द ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ऑब्जर्वेबिलिटी यही है कि एक तो ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब क्या है, अगर 2 चीजें निकालना है तो यहाँ 2 इक्वेशन होनी चाहिए, 5 चीजें निकालनी है तो 5 इक्वेशन होना चाहिए। नॉट ओनली दैट, ऑब्जर्वेबिलिटी मिनिमम इक्वेशन रिक्वायर्ड जस्ट टू कैलकुलेट द आउटपुट, बट those equations should be independent। ऐसा नहीं है जैसे एक कह दिया i1 plus i2 इक्वल टू 2, फिर कह दिया 2i1 plus 2i2 इक्वल टू 4, तो ये 2 इक्वेशन नहीं हुई ना, these are the only one equation। तो all equations should be independent to each other, then and with that condition and minimum number of equations should be the equal to and greater than what are to be calculated, what are to be calculated, so that is called the observability। तो उसको
ऑब्जर्वेबिलिटी को ध्यान में, इफ सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल देन ओनली द स्टेट एस्टिमेटर विल वर्क। स्टेट एस्टिमेशन मतलब वही जो हमने अभी किया, जी इनवर्स एस ट्रांसपोर्ट डब्ल्यू जेड और वेट डाटा है या नहीं है, वो एवरीथिंग इज बीइंग डन हियर। स्टेट एस्टिमेशन में यहाँ करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू रिजल्ट आएगा, मींस एस ट्रांसपोर्ट डब्ल्यू जेड यहाँ करेंगे, फिर देखेंगे वेट डाटा है या नहीं है। इफ देयर इज वेट डाटा, फिर हमने दोबारा से इसको वेट डाटा को रिमूव करके वो पोर्शन वो एक इक्वेशन हटा देंगे, फिर इसको प्रोसेस करेंगे एंड दिस विल गो ऑन टिल वी गेट वी आई इन थीटा आई। तो ये तो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर हो गया। और हमें ये पता लग गया अदर देन दिस pi and qi there are some other equations. Now what may be the other equations? And rest everything is same. W is equal to hx, ये this will be the same. h चेंज हो गया है, h का हमारा स्टेटस चेंज हो गया। पहले h क्या था, सिंपल कांस्टेंट वैल्यूज थे h के अंदर। नाउ h के अंदर क्या होंगी, h के अंदर हमने न्यूटन रेफसन मेथड में देखा नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं, उनका डेरिवेटिव्स हैं। Otherwise, overall calculation will be same. Now, अब this is all okay. हाँ देखिए, now एक तो था पी आई एन क्यू आई कैसे निकालें, ये हमें यहाँ पे बता दिया है। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू टेल, क्यों हमने लोड फ्लो स्टडी में आपको बताया हाउ टू फाइंड आउट द पी आई एन क्यू आई। ये है ना, पी आई एन क्यू आई की इक्वेशन ऑलरेडी बताया हुआ है। बट इन एडिशन टू दिस हमने कुछ मेजरमेंट्स और लिए हैं दैट आर कॉल्ड द पावर फ्लोज मीन्स पावर फ्लोज इन द लाइन। देखिए ये हमने ये देखिए, दिस इज द फिगर। इस फिगर में देखिए इफ द इट इज ith बस, इट इज द jth बस, i से j के बीच में ये रेजिस्टेंस है, ये इसका रिएक्टेंस है, एंड दिस आर द ससेप्टेंस, ये हमारा शंट पैरामीटर है, दिस इज द सीरीज पैरामीटर। तो पावर फ्लो मतलब यहाँ अभी तक हमने पी आई एन क्यू क्या था, पी आई एन क्यू आई था इंजेक्टेड पावर एट बस नंबर i, पी आई एंड क्यू आई इज द इंजेक्टेड पावर एट बस नंबर i। लेकिन अब हमें कुछ एडिशनल मेजरमेंट्स किए हैं। एडिशनल मेजरमेंट, व्हाट इज द पावर फ्लो इनसाइड द लाइन, तो दिस इज द पी आई जे। और पी आई जे का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ जो पावर फ्लो हो रही है, पी आई जे का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आप देखेंगे इसी फिगर को ध्यान में रखेंगे, देखिए पी आई का फॉर्मूला ये लिखा है, वी आई माइनस वी, देखिए वी आई माइनस वी जे डिवाइडेड इनटू एडमिटेंस, वोल्टेज ith बस का वोल्टेज, jth बस का वोल्टेज, उसका एडमिटेंस का मल्टीप्लाई, तो ये करंट हो गया, करंट का फॉर्मूला हो गया करंट। एंड बी कम्प्लेक्स कंजुगेट आई क्या हो गई, पावर फ्लो हो गई लाइन की। और ये कौन सी पावर हो गई, ये शंट पैरामीटर में, यहाँ देखिए इसमें पावर फ्लो इनटू दिस शंट पैरामीटर में पावर कितना होगा, वी आई स्क्वायर दिस, वी आई स्क्वायर एक्स, वी आई स्क्वायर बाई एक्स होता है, वी आई स्क्वायर इनटू दिस ससेप्टेंस y, तो ये पावर हो गई। तो दिस पावर प्लस दिस पावर इज द नेट पावर फ्लोइंग फ्रॉम i टू j के बीच में ये पावर फ्लो करेगी। ऐसे ही यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इसके लिए इक्वेशन लिखा, ये इक्वेशन लिख दिया ना, इसमें ये y i j, ये i और j के बीच का कंडक्टेंस ससेप्टेंस था। इसको सिंपली देखिए v इसका स्क्वायर करेंगे, ये वी आई स्क्वायर वाई आई जे एंड फाइव, ये इसका एंगल ऑफ वाई आई जे इज द दिस साई आई जे, और इसका मल्टीप्लाई वी आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये साई आई जे और इसका एंगल आ गया, प्लस ये देन इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई। जब इसका मल्टीप्लाई तो बी कम्प्लेक्स, ये बी आई कम्प्लेक्स कंजुगेट वीजे, वी आई कम्प्लेक्स कंजुगेट वीजे, ये वाई आई जे, ओके। और एंगल, इसका भी एंगल और इसका जे का एंगल और आई का एंगल, डेल्टा जे डेल्टा आई और फाई आई जे, ओके। इसको हमने इस जगह नेगलेक्ट कर दिया है, और नेगलेक्ट नहीं करें तो इसकी इक्वेशन क्या होगी ये मैं अभी आगे बताऊंगा। नेगलेक्ट करके मीन जितना आपने चीजें नेगलेक्ट कर देंगे उतना कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा
और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन बढ़ जाएगा। इसका रियल पार्ट, इसमें इसकी कॉस एंगल की जगह कॉस लिखेंगे तो इसका पीआईजे आ जाएगा, रियल पावर आ जाएगा, और साइन लिखेंगे तो रियल पावर आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर पीआईजे एंड क्यूआईजे। अच्छा, ये पीआई क्यूआई तो ऑलरेडी लोड फ्लो में बताया है, इसलिए नहीं बताएंगे। इसमें देखिए, इसी को अगर हम इग्नोर नहीं करेंगे, जो एडमिटेंस था, एडमिटेंस को हमने इन प्लेस ऑफ बाई आई जे वी राइट इट इज ए जी आई जे प्लस जे बी आई जे, और इग्नोर अगर नहीं करेंगे तो शंट पैरामीटर भी है, दो इक्वेशन विल बी मॉडिफाइड लाइक दिस। ये अच्छा, ना करंट फ्लोइंग पीआई, जो पीआई की पावर और क्यूआई, जैसे ये पीआई की पावर है, क्यूआई की पावर है, पीआई स्क्वायर क्यूआई स्क्वायर मतलब एस इज इक्वल टू वी इनटू आई, तो हमने करंट निकाल लिया। दिस इज द पावर फॉर द करंट। ये सेम है, इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये करंट की इक्वेशन आ जाएगी। मींस हम मेजर कर सकते हैं पावर फ्लो, एक्टिव पावर फ्लो, रिएक्टिव पावर फ्लो और करंट, और एनी सम अदर पैरामीटर आल्सो। तो जो ये दीज आर द इनपुट्स गिवन। अब अगेन अगर आप लोड फ्लो में इसमें जाएंगे, देखिए यहाँ पे ये क्या था, P2, ये P2 था तो ये P2 आया, P2 का विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 3, डेल्टा एन लाइक दिस। ऐसे P3 का विद रिस्पेक्ट टू ऑल, Pn का विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एन वोल्टेजेस। तो यहाँ पे जब इक्वेशन बढ़ जाएंगी, Pij Qij हो जाएगा, तो Pij Qij की जो इक्वेशन आई है उनका विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा एन, Vm Vn ये सब निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ निकाला था। अगर आपको ध्यान होगा, जैसे यहाँ निकाला था, देखो ये क्वेश्चन है, इनको सॉल्व किया था, पी आई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा। ऐसे ही अब हमें पी आई जे क्यू आई जे की इक्वेशन आई है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा आई एंड डेल्टा पी, विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज आई एंड वोल्टेज जे। तो सेम इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दोज, अगेन रीच हियर, आफ्टर सॉल्विंग दोज, ये देखिए ये किया है, पी आई को विद रिस्पेक्ट, ये तो पी आई आ गया, ये Qij देखिए पी की इक्वेशन पता है, तो पी आई विद रिस्पेक्ट टू थीटा आई, पी आई विद रिस्पेक्ट टू थीटा जे, पी आई जे विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, पी आई जे विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज जे। ऐसे ही क्यू आई का विद रिस्पेक्ट टू दिस, क्यू आई जे विद रिस्पेक्ट टू थीटा जे, देन विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। ऐसे ही करंट का भी, ये करंट की इक्वेशन है, ये डाउन। ऐसे करंट का विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, करंट विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे इसमें इसके अंदर रखना है। एक बार ये कैलकुलेट हो गया, ये यहाँ पे रख गया, तो ये हमारा H बन गया। अब ये H बन गया, ये P है, ये डेल्टा है, तो हम सिंपली फिर देन तो अगेन, तो हमारा ये जो H है, दैट जो न्यूटन रैप्सन मेथड में हम क्या कहते थे उसे, न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या कहते थे, जैकोबियन मैट्रिक्स, में हम इसको H कहेंगे। तो ये हमारा H इस फॉर्म में होगा, H विल बी इन दिस फॉर्म। ये इंजेक्टेड, न्यूटन रैप्सन में केवल ये था, इफ यू रिमेंबर। देखिए न्यूटन रैप्सन भी आपको डिफिकल्ट लगता था, अब न्यूटन रैप्सन का इसका एक पार्ट, न्यूटन रैप्सन इज ए स्मॉल पार्ट, केवल इतना पोर्शन यहाँ से लेके ये पी आई इंजेक्टेड थीटा एंड ये इंजेक्टेड वोल्टेज, इतना ये न्यूटन रैप्सन। इसके अलावा ये पी फ्लो, क्यू फ्लो, ये मतलब पावर फ्लो एंड क्यू आई पावर फ्लो, ये इसका हो गया इंजेक्टेड, पी आई इंजेक्टेड क्यू आई इंजेक्टेड था, पी फ्लो आ गया, क्यू फ्लो आ गया, ये करंट और एनी अदर मेजरमेंट इफ दे आर। तो ये H मॉडिफाइड हो गया, H मॉडिफाई हो गया। अब वही H ट्रांसपोर्ट W, जैसे हम सभी को, जैसे हमने दूसरी मेथड, दूसरी चीजें सॉल्व की है, H ट्रांसपोर्ट W Z, सेम फिर यहाँ पे लगाना शुरू कर देंगे। ये H ट्रांसपोर्ट, ये R इनवर्स इज नथिंग बट W,
H ट्रांसपोज WH, ये फिर हमने इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे. So I think this should be clear. Means if the, कहने का मतलब क्या हुआ, if the system is non-linear actual power system and we want the exact calculation, then we have to use power flow equation, and this Jacobian matrix is modified to obtain the H. Once we obtain the system model in terms of H, we can apply the state estimator, that is the H transpose WH inverse H transpose WZ, and we obtain that. फिर उसके अलावा वेट डाटा है, उसको कंपेयर करना है, रिमूव करना है. दैट एवरीथिंग इज सेम एज वी डिड इन केस ऑफ डीसी सर्किट. ओके, तो नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन इन दिस, whether things are clear or not? Clear है sir. So now we stop recording.